हम भी प्रोफेशनल, वो भी एक्सपीरियंस करेंगे सर, प्रोफेशनल लेवल। वेरी सुन। कहाँ चला गया मेरा शीट? अरे, व्हाट्स रॉन्ग? हाँ, वही तो। चलो, दिस इज अ सेक्शन सी। एक्सक्यूज मी। सेक्शन सी क्वेश्चन. In relation to per D company's potential change of supplier, calculate the total annual cost relating to chemical X for both the current and potential supplier. Calculate the value of the average investment in chemical X inventory for both the current and potential supplier and recommend with justification whether per D company should change its supplier. ठीक है, एक एक करके देखते हैं। 10 मार्क्स का सब पार्ट है, विच इज विथ रिस्पेक्ट टू छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है। आजकल इफ यू मतलब अगर आप कभी ट्रेंड्स नोटिस करोगे तो पहले ना बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते थे, एफएम में, पीएम में, जो भी है। आजकल द क्वेश्चंस हैव बिकम इजियर, दे हैव बिकम शॉर्टर, डिटेलिंग कम होता है। सो दैट्स अ गुड थिंग आई वुड से। Purdy company uses 5 million liters of chemical X per year in its plastic manufacturing business. Chemical X costs Purdy company 2.5 per liter per year to store, and each order requires a quality check that costs Purdy company 400 per dollar to perform. Purdy company purchases chemical X from a local supplier at a cost of 3 per liter. It uses the EOQ model to determine order size and carries a safety inventory of 5 days usage to protect against variations in lead time demand. Purdy company has recently been approached by a company offering to supply chemical X at a cost of 2.25 per liter if it will order in quantities of 1 million liter. The new supplier's credit terms are the same as the current supplier. Purdy company estimates that its storage cost per liter and its quality check cost per order will be unchanged if it accepts this offer, and that it will have sufficient storage space to cope with larger orders. However, it will need to increase its safety inventory to 15 days usage if it accepts the new supplier. Purdy company is under pressure from its bank to reduce its OD, and its finance director is interested in the effect of the new supplier's offer on chemical X cost. Working capital investment, my god, बहुत बड़बड़ करके रखी है। बट पूछा क्या है आपको? टोटल एनुअल कॉस्ट रिलेटिंग टू केमिकल एक्स फॉर बोथ करंट एंड पोटेंशियल सप्लायर। ठीक है। ठीक है, let's start with the old supplier, as in the current supplier. What is he offering? And new supplier. You know my obsession with formatting. उसके बिना मेरे को खाना हजम नहीं होता है रात को। चलो, let's see. Now, see whether it is the current supplier or whether it is the new supplier. One thing is for sure कि the total quantity that you will need remains the same ना, annual demand doesn't change. So what is the annual demand? 5 million liters. हाँ, Okay. Now let's see how much are you ordering with the current supplier. ठीक है। uh, right now Purdy company purchase chemical X costs Purdy company 2.5 per liter to store, and each order requires a quality check that Purdy costs 400, that costs Purdy 400 to perform. Right now it is using the economic order quantity model to determine the order size. ठीक है। what is the cost per liter, purchase cost per unit? ठीक है, purchase cost per unit. Let's talk about the current supplier. Okay, it is 3 per liter. Now what is the order size? They are using the EOQ model. So working notes में सबसे पहले let's calculate the economic order quantity, EOQ calculation. कितना है आपका? So you will need annual demand square root of 2 AO upon C, 2 into annual demand into order cost per order divided by holding cost per unit per annum. ठीक है।
आपका ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? हैव दे गिवन दैट टू यू? It is 400. Each order requires a quality check that costs 400, that costs per day 400 per order to perform. There is no other. Every time an order comes, you have to spend 400. So that amount is your ordering related cost. Do you have the holding cost per unit per annum? Let's see. It costs 2.5 per liter per year to store. That means this is your holding cost per unit per annum, right? So यहाँ पे annual demand 5 million, ठीक है। ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर 400। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 2.5, उसका जो स्टोरेज कॉस्ट है दैट इज योर होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है। अब ईओक्यू कैसे निकालेंगे? ईओक्यू इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, करेक्ट। 40,000 इज योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मीन्स एवरी टाइम यू विल प्लेस एन ऑर्डर, हाउ मेनी यूनिट्स विल यू विल ऑर्डर 40,000 यूनिट्स, ठीक है। सो कैन आई से दैट माई ऑर्डर साइज इज 40,000 यूनिट्स? सो अगर इसके बाद इफ आई आस्क यू व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैज टू बी एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज 125. Okay, this is your total number of orders. Now we have order cost per order, वो भी लिख दो, order cost per order 400. So what is your total order cost? D into E, है ना? Then what is average inventory? Order size by 2 हो जाएगा, है ना? Order size C by 2 प्लस बफर डालना पड़ेगा, राइट? बफर स्टॉक विल ऑलवेज बी देयर विथ यू, है ना? बफर स्टॉक इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर विथ यू। तो हाउ विल यू गेट दैट? कितना है बफर स्टॉक अंडर द ओल्ड मॉडल? सर 5 डे। सर 5 days। 5 डेज का स्टॉक है, ठीक है। सो लेट मी कैलकुलेट सेफ, और लेट मी राइट डाउन सेफ्टी स्टॉक, ठीक है। बफर स्टॉक या सेफ्टी स्टॉक, वर्किंग नोट टू कैलकुलेशन ऑफ बफर स्टॉक। कैसे करेंगे आप कैलकुलेट? 5 डेज है, 365 डेज इन अ ईयर है ना? सो फॉर ओल्ड सप्लायर 5 मिलियन इंटू, 5 मिलियन ही है ना? हाँ, 5 मिलियन इंटू 5 डेज वर्थ ऑफ डिमांड, 68,493। अब लेट्स राइट दैट डाउन। अब इफ आई हैव टू कैलकुलेट माई होल्डिंग कॉस्ट पर ईयर, कैसे निकलेगा होल्डिंग कॉस्ट पर ईयर? होल्डिंग कॉस्ट पर ईयर हैज टू बी एवरेज इन्वेंट्री which is order size by 2 into 2.5, है ना? What is 2.5? 2.5 is the holding cost per unit per annum, correct? So यहाँ पे दिखाते हैं आपको वर्किंग नोट 3, होल्डिंग कॉस्ट, एवरेज इन्वेंट्री
is order size by 2, 40,000 by 2, 40,000 ही है ना, हाँ, is 20,000. ठीक है. Then buffer stock is 68,493. ठीक है. And buffer stock is in your warehouse at all times. ठीक है. So when you order 40,000 units in one go, वो ऊपर नीचे it keeps on happening, right? So when you order it is 400, then it goes down to zero, then it again goes to 400, again comes down to zero. तो यहाँ पे we take average inventory, but buffer stock is always with you. So holding cost for old supplier 20,000 plus 68,493 into 2.5. बताइए कितना आता है? तो 2,21,232.5. 221,232. करेक्ट है ना? सो इधर लिखो होल्डिंग कॉस्ट 221,232. ये हो गया आपका वर्किंग नोट 3. अच्छा, परचेज कॉस्ट पर यूनिट है तो यू नो व्हाट यार, इधर ही कर लेना चाहिए था, बट चलो इधर करते हैं. टोटल परचेज कॉस्ट ए इंटू बी. ठीक है. व्हाट एल्स शुड बी एडेड? लेट्स टेक द टोटल कॉस्ट इफ वी कैन. टोटल कॉस्ट में आएगा एफ टोटल ऑर्डर कॉस्ट प्लस एच टोटल होल्डिंग कॉस्ट प्लस आई टोटल परचेस कॉस्ट. 15271,232. ठीक है. ये हो गया आपका करंट सप्लायर. अब न्यू सप्लायर के केस में क्या है? न्यू सप्लायर के केस में इफ यू गो फॉर द न्यू सप्लायर, आपको कितना देना पड़ेगा? पर लीटर का कॉस्ट 2.25. ठीक है. सो टोटल परचेस कॉस्ट इज 1,12,50,000. Now, Purdy Company has recently been approached by a company offering to supply chemical X at a cost of 2.25 per liter if it will order in quantities of 1 million liter. तो कितना ऑर्डर करना पड़ेगा? ऑर्डर साइज है आपका 1 million liter. नंबर ऑफ ऑर्डर्स विल बी 50 लाख अपॉन 5. ठीक है. ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर है 400. सो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी 2,000. है ना? यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक कितना रखना है इन केस ऑफ न्यू सप्लायर? 15 days. Storage cost per liter and quality check cost will remain unchanged if it accepts the offer, and it will have sufficient storage space to cope up with the large orders. However, it will need to increase its safety inventory to 15 days usage if it accepts the new supplier's offer. ठीक है. सो यहाँ पे ओल्ड सप्लायर. ठीक है. यहाँ पे आएगा आपका न्यू सप्लायर. यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री बफर स्टॉक कैसे निकालेंगे? फॉर न्यू सप्लायर करते हैं, है ना? फॉर न्यू सप्लायर 5 मिलियन इंटू 15/365 कितना आता है बताइए? सर 205,479. 205,479.
Okay. So buffer stock is 205479. ठीक है. Holding cost for new supplier. बताइए तो कितना आता है. सर 1763697.5। सर उधर 5 लाख नहीं आएगा? अरे हाँ, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक माय मिस्टेक. 5 लाख. अब बताइए. 17 1763697.5। 1763698. 205479. ठीक है. ये कितना आएगा टोटल? 1315698, है ना? 13015,698. तो इफ यू स्विच टू द न्यू सप्लायर कितना सेविंग होगा? सेविंग इफ यू स्विच टू न्यू सप्लायर 2255,535. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एवरेज. ठीक है, ये हो गया टोटल एनुअल कॉस्ट रिलेटिंग टू बोथ द करंट एंड द पोटेंट ओल्ड सप्लायर. So should you change your supplier? Yes, of course, you should change your supplier. आपका एवरेज इन्वेंट्री अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप एवरेज इन्वेंट्री? एवरेज इन्वेंट्री होगा आपका ऑर्डर साइज बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक. करेक्ट. यूजुअली आपका एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है? ऑर्डर साइज अपॉन 2 होता है, राइट? यहां पे आपको सी एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम यू विल हैव योर सेफ्टी स्टॉक विथ यू, राइट? So this is the first 10 marks सब part. एक बार देखो. You want me to go down to the working notes? I'll take you there also. देख लो एक बार. सर ऐसे वाले क्वेश्चंस ही आते हैं क्या? हाँ. सर ऐसे आएंगे तो हो जाएगा। ऐसे ही आता है. जो हमने क्लास के टाइम किया है ना कवर, वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं. सर कैन यू प्लीज स्क्रॉल डाउन लिटिल बिट? और शर्मा जी कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए। ठीक है. सर ये डिविडेंड मॉडल जो होता है वो इंडियन बुक में थोड़े से अलग होते हैं। हाँ, हो ऐसा सकता क्यों? है. सर मेरे कॉलेज में उसमें डिविडेंड देते हैं तो हाँ. प्राइस बढ़ता है। नहीं नहीं, हो सकता है, हो सकता है.
Once you're done, let me know. डन सर। ठीक है, ओके। Discuss the conflict that exists between the objectives of liquidity and profitability in the management of working capital. ये वर्किंग कैपिटल के डिस्कशन में एकदम स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, डू यू रिमेम्बर? लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी। यस सर। यस। वही है, बट आई वुड स्पेसिफिकली वांट यू टू रीड द आंसर गिवन एट द बैक। ठीक है, आई विल, बिकॉज क्या है, इट्स द सेम थिंग, बट थोड़ा जस्ट गेटिंग टू नो कि यार हाउ आर दे फ्रेमिंग। हमारे पॉइंट्स ऑल्सो आर एग्जैक्टली द सेम, कोई अलग नहीं है। जस्ट गो थ्रू इट वंस सो दैट यू नो कि पीछे उन्होंने कैसे लिखा है। नाउ डोंट हैव दैट अननेसेसरी बर्डन कि यार मुझे उनके जैसा लिखना है, मुझे उनके जैसा नहीं लिखना है, बिकॉज ACCA ऑफन ना नलिफाइज द रिजल्ट इफ योर आंसर इज एग्जैक्टली लाइक द आंसर एट द बैक। एंड सोचो ना, समथिंग एज सिंपल एज लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी, कितना बेसिक कॉन्सेप्ट है, राइट? बट इफ यू आर गेटिंग 5 marks फॉर दैट, देन व्हाई नॉट? सर दो सेक्शन सी क्वेश्चन में से एक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल ही है। पक्का है। द अदर वन कुड बी वर्किंग कैपिटल और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वन ऑफ द टू। बट इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और एनपीवी छोड़ के ना उनको कोई पूछने का इतना बड़ा क्वेश्चन है भी नहीं उनके पास, सो दे विल आस्क फ्रॉम दैट। सर मतलब वहां से वो वाला टाइप का क्वेश्चन रहेगा जहाँ पे भी वो टैक्सेबल अलाउेबल डेप्रिसिएशन है, वर्किंग कैपिटल है, वैसा वाला। करेक्ट करेक्ट, फुल एनपीवी वाला जो है वो। ठीक है। सर आपने वैसे वो तीन करवाए थे, मेरे को वो शीट्स भी याद है, 14, 15, 16। हाँ, और फिर जो बात के जो है ना, द recordings that I said I have asked that guy to ensure are visible in your account, उसमें और 4-5 है। ठीक है सर। एक गाइस चेक कर लो, दिस इज सर मैं भी ऑल। चेक कर लेता हूँ। हाँ, फॉर ऑल थ्री ऑफ यू ना, चेक वेदर यू हैव रिकॉर्डिंग्स डेटेड 10th May to 29th May in your LMS login. These are FM practice questions that I have done, सेक्शन ABC तीनों है इसमें। अभी चेक कर लो, नहीं होगा ना तो मैं उसको फिर से याद दिला दूंगा। ये सर वो अलग से उसमें है, स्किल लेवल करके है उसमें, आपका जो क्लास है उसमें है सब। वो सक्सेस प्रिंट वो कुछ यस सर। सर है सर अभी है। 10, 9, 10, 11, हाँ 12। हाँ, उसमें भी यू विल फाइंड मोर क्वेश्चंस। ठीक है। हाँ शर्मा जी, आप कुछ पूछने वाले थे? यस, वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का पूछना था सर, वही क्वेश्चन था जिसमें 4 to 5 वर्किंग नोट्स है सर। क्या क्या क्या? जिसमें 4 to 5 वर्किंग नोट्स होते हैं सर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में। आ सकते हैं, आ सकते हैं। ओके। मतलब मैक्सिमम 4-5, उसके ऊपर नहीं, मतलब क्वेश्चन ही 20 मार्क 50 मार्क का थोड़ी पूछना है ना। एंड एक्सप्लेन द कैश ऑपरेटिंग साइकिल एंड इट्स रिलेशनशिप विद द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। अब यार इतने डायरेक्ट थियोरी क्वेश्चंस अगर आपको पेपर में आएंगे तो व्हाट एल्स डू यू नीड? यू नो व्हाट इज कैश ऑपरेटिंग साइकिल, right? And its relationship with the level of investment in working capital. How does cash operating so first of all you will have to explain what is cash operating cycle.
पूरा explain with a small illustration, and then talk about the connection with level of investment in working capital. So um, how is that connected? तो मतलब जितना रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री ज़्यादा होगा उतना द ऑपरेटिंग साइकिल का लाइफ भी ज़्यादा रहेगा। Correct. But of course, it cannot be just one line. Now, my recommendation to you when you are writing the FM paper, ठीक है, किट ओपन करो कैप्लन का। इन एवरी सेक्शन सी क्वेश्चन आपको 10 to 12 मार्क्स का न्यूमेरिकल दिखेगा, 8 to 10 मार्क्स का थियोरी दिखेगा। आपको क्या करना है, लुक एट द थियोरी क्वेश्चन। नाउ इन दिस केस इफ यू ऑब्जर्व, ये बोथ दीज क्वेश्चंस हैव गॉट नथिंग टू डू विथ द न्यूमेरिकल डेटा गिवन अबव, राइट? ये पूरा इंडिपेंडेंट है। फॉलो दिस रिलीजियसली फॉर द नेक्स्ट, आपको तो 14 डेज है, ठीक है? पिकअप, ओपन सेक्शन सी, थियोरी क्वेश्चन देखो, पीछे का आंसर देखो, ठीक है? रीड इट 2-3 टाइम्स, ओके? उसके बाद try to see if you can quickly type it out in your notebook, not exactly just getting the concept and writing it in your notebook, जैसे working capital cycle, how is it calculated, what does it mean, and what is its connection with the level of investment, ठीक है? ऐसा if every day you pick up 3 to 4 questions, read the theory question, read the answer at the back, 2-3 बार उसको पढ़ो, मेक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड राइट डाउन द आंसर। आपका ऑलमोस्ट, जैसे आपका पीएम का आधा पेपर इज थियोरी, इसका भी ऑलमोस्ट आधा पेपर इज थियोरी। एंड थियोरी क्वेश्चंस इफ यू ऑब्जर्व ना आर वेरी रेपिटेटिव इन एफएम। पीएम में तो चलो फिर भी थोड़ा सा दिमाग लगाने टाइप क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे तो उतना भी नहीं होता है। स्ट्रेट अवे व्हाट इज वर्किंग कैपिटल साइकिल, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दैट, इतने ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आपको पेपर में आते हैं, ठीक है? तो और रेपिटेटिव टाइप के हैं, मतलब बेनिफिट्स ऑफ वाई इज एनपीवी बेटर देन आईआरआर, व्हाट इज दिस साइकिल, व्हाट इज दैट साइकिल, व्हाट इज मतलब इस्लामिक फाइनेंस जो हमने किया था, एक एकदम एंड एंड में रिकॉर्डिंग है, मैं आपको डेट भी बताता हूँ। और 29 मई के आसपास का जो रिकॉर्डिंग है उसमें आपको इस्लामिक फाइनेंस दिखेगा। All of these things very repetitive, बार बार they keep on asking the same thing, which is why if you pick up, say today if you sit down रात को after this class, pick up 3 questions from working capital section C, read the theory, learn मत करो, read the theory 3-4 times, ठीक है? कल और 3 क्वेश्चन उठाओ, परसों और 4 क्वेश्चन उठाओ, योर जॉब इज डन। लास्ट 10 डेज में एवरी डे आई वुड से इफ यू आर giving 7, if you are doing say 4 hours of padhai every day, 3 hours should be devoted to numerical, 1 hour should be devoted to theory, that should be the split। 1 hour theory को every day आपको देना ही है। सेम चीजें हैं, सी व्हेन यू प्रिपेयर सेक्शन सी थियरी ऑटोमेटिकली ए एंड बी भी प्रिपेयर हो ही जाता है आपका, करेक्ट? सो प्लीज फोकस ऑन दैट, विल यू डू इट? यस सर। बस होप, आई मीन बार बार वही बोलता हूँ, लास्ट बैच होगा, लास्ट बैच होगा, मे बी ये लास्ट होगा, तो यार आप अच्छे से कर दो एफएम का, ठीक है? चलो, there's one more question. Does everyone have the kit? Kit है आपके सर पास? आई डोंट हैव इट। Don't worry, I'll send the question. There's one question I want you guys to read. I will send it on the group. कैप्लन का किट सर। हाँ हाँ, कैप्लन का किट है ये। कैप्लन मतलब देखो, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस तो अलग अलग नहीं होते हैं, सेम ही होते हैं, ठीक है? ये एक अलग क्वेश्चन है। आई विल गिव यू 5 to 6 minutes टू रीड, कैंडी कंपनी करके है, ठीक है? रीड इट, टेक 5 to 6 minutes, देन वील डू इट टुगेदर। Oh, before we begin, just one moment. What is the question? The question is calculate the financial effect on Candy Company of accepting the bulk purchase discount. Calculate the financial effect on Candy Company of offering the early settlement discount. Using your results in 1 and 2, comment on the financial acceptability. आप थियोरी क्वेश्चन देखो, बाकी सब छोड़ो, थियोरी क्वेश्चन देखो। डिस्कस द वर्किंग कैपिटल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट। Explain cash operating cycle and discuss its relationship with the level of investment in working capital. Isn't it copy paste? यस सर। है ना? यस सर। तो आप 2 क्वेश्चन करके, टाइम तो एक का ही जा रहा है ना, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग। नाउ
Candy Company purchases a number of different products from various manufacturers, which it then sells on credit to a number of large retailers. Candy Company is currently reviewing its working capital investment, and two independent options are currently under observation. A bulk purchase discount from one of its biggest suppliers and offering an early settlement discount to its customer. One of Candy Company's biggest selling items is the gimbal. Candy Company pays $30 for gimbal and annual sales demand is 18,000. At present, Candy Company's order size is 1,000 gimbals and each order costs $75 to place excluding the purchase price. Annual holding costs are equivalent to 9% of the purchase price of a gimbal. Due to high level of demand, Candy Company always holds a buffer inventory sufficient to cover 2 days demand. Candy Company has been offered a bulk purchase discount of 1.5% of the purchase price if the company increases its order size to 1500 gimbals. Although this is 50% more than the size of the current order quantity, Candy Company feels that it has sufficient storage capacity to accommodate this, but annual holding cost would increase to 10% of the purchase price. Also, the increased size of the order would result in a higher delivery cost, increasing the cost of placing an order by 25 per order. If accepted, Candy Company would still maintain a buffer inventory sufficient to cover 2 days demand. Don't you think the data points given to you so far are exactly like the previous question? Yes, sir. है ना, जो डेटा पॉइंट आपको दिया है, इट इज एग्जैक्टली लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन. नाउ टेल मी समथिंग. इफ आई वर टू टेल यू कि यार ये पार्ट आप खुद से अटेम्प्ट करो, दिस इज द फॉर्मेट, करेक्ट? यस सर. एनुअल सेल्स डिमांड इज 18, ऑर्डर साइज करंटली इज 1000 गिम्बल्स. ठीक है. इफ आई गिव यू 5 to 6 मिनट्स, विल यू बी, आपको टेबल भी दिया है मैंने, आपको सिर्फ उसमें वैल्यूज फिल करना है, आप कर पाएंगे? यस सर. ठीक है. इट्स 7:27, में आपको लगे तो चलो 8 मिनट्स देता हूँ, 7:35 तक मुझे करके बताओ. ठीक है. देन आई विल फिल इट ओके. फॉर यू. चलो. एनुअल डिमांड 18,000. परचेज कॉस्ट पर यूनिट. अच्छा, जो जो डेटा मिलता है, लेट स्टार्ट पोस्टिंग दैट. एट प्रेजेंट ऑर्डर साइज इज 1000 गिम्बल्स. ईच ऑर्डर, सो दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज 18. ठीक है. ईच ऑर्डर कॉस्ट 75 टू प्लेस एक्सक्लूडिंग द परचेज प्राइस. एनुअल होल्डिंग कॉस्ट्स आर इक्वल टू 9% of the purchase price. Due to high levels of demand for gimbals, Candy Company always holds a buffer inventory to cover 2 days worth of demand. ठीक है. तो सेफ्टी स्टॉक कितना होगा? हाउ मेनी डेज आर यू सपोज टू कंसिडर? 360 days. So this into 2 by 360. 100 is the buffer stock. ठीक है. Now tell me, what is the purchase cost per unit? 30. कितना? 30. टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट दिस मच. होल्डिंग कॉस्ट कैसे होगा आपका? होल्डिंग कॉस्ट विल बी ऑर्डर साइज बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक इंटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. कितना है होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम? इट इज 9% ऑफ द परचेज प्राइस, है ना. परचेज प्राइस है 30, इसका 9% होगा 1620. मेक सेंस? यस सर. यस सर. सो फार, आई मीन, आई वुड लाइक टू बिलीव कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक. ठीक है. यस अभी आगे देखते हैं. एंड टोटल परचेज कॉस्ट, अच्छा हाँ, दिस इज लेफ्ट. टोटल कॉस्ट 542,970. ठीक है. यहां पे परचेज कॉस्ट कितना होगा? डिस्काउंट ऑफ 1.5%. ऑर्डर साइज कितना बोला? 1500. नंबर ऑफ ऑर्डर्स 12. ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, विल दैट रिमेन द सेम और विल इट चेंज? सर. क्या होगा? व्हाट शुड इट बी?
Though would result also the increased size of the order would result in higher delivery cost, increasing the cost of placing an order by 25 per order. तो ये 25 से increase हो जाएगा. Total ordering cost is 1200. Safety stock, again it will keep the same. Holding cost, how do we calculate holding cost? Holding cost is average inventory, which is order size by 2 plus safety stock into, यहाँ पे क्या बोला है? But annual holding cost would increase to 10% of the purchase price. 2512. Did you get the same answer? यस सर। Cost saving. बद्रू शर्मा जी, सेम आया आपका? सर वो जो मल्टीप्लाई करा आपने वो 2.97 के साथ करा, कौन सा क्या? सर होल्डिंग कॉस्ट के लिए। कॉस्ट को टोटल परचेज कॉस्ट। ये मतलब 29.5? नो, नो सर, इससे ऊपर वाला 2512 में जो। ये अच्छा, 2512 इज, मेरा एवरेज स्टॉक कितना होगा? एवरेज स्टॉक इज 1500/2, करेक्ट? 1500/2 प्लस सेफ्टी स्टॉक कितना? 100 इंटू परचेस कॉस्ट कितना है? 29.55 इंटू 10%, ऐसे निकला. ओके। ठीक है. बस यही करना था जो हमने कर लिया. कैलकुलेट, ये फर्स्ट पार्ट था. ठीक है. सेकंड पार्ट, फिनेंशियल इफेक्ट ऑन कैंडिको ऑफ ऑफरिंग द अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट. Candyco has total credit sales of 45 million per year, and all of Candy Company's customers are equal in terms of sales value. Although Candy Company's credit terms require payment on 30 days, only 60% of its credit customers pay on time. The remaining 40% of customers pay on an average on 40 days. Candy Company is considering the introduction of an early settlement discount of 0.5% for payment within 10 days. It expects that 50% of the customers will take advantage of the offer and pay in 10 days. 20% will still pay to terms, and there will be 30% who will continue to pay on an average for 40 days. Candy Company finances in the short term at a cost of 7% per year. ठीक है. Let's analyze the current situation first, है ना? टोटल क्रेडिट सेल्स कितना है? 45 मिलियन. ठीक है. 60% ऑफ द कस्टमर्स पे ऑन टाइम, है ना? एंड रिमेनिंग पे आफ्टर 40 days. सो 60% पे ऑन टाइम, 40% पे ऑन 40th डे. ये क्या होगा? 45 मिलियन इंटू 60% इंटू 30/360. 45 million into 40% into 40/360. 20 lakhs. ठीक है. टोटल रिसीवेबल्स कितना होगा? 42,50,000. ठीक है. What is the cost of financing debtors? 7%. So current financing cost, this into 7%, 2,97,500.
What will happen after introduction of discount? Discount of 0.5% for payment within 10 days. 50% will take the advantage of the offer and pay in 10 days. 20% will pay to terms. Pay to terms matlab 30 days. And remaining 30% will continue to pay on, ठीक है, 50% take discount 10 days. ठीक है. Then 20% pay on 30th day. 30% pay on 40th day. 45 million into 50% into 10 by 360. करेक्ट. यहाँ पे 45 मिलियन इंटू 20% इंटू 30 by 360. 30% इंटू 40 by 360. कितना है टोटल रिसीवेबल? 201,250 है ना. सो सेविंग इन फाइनेंस कॉस्ट कितना हो जाएगा? 297,500 माइनस 201,250, 96,250 हो जाएगा सेविंग इन फाइनेंस कॉस्ट. एंड व्हाट एल्स? The discount that we डिस्काउंट have given. कॉस्ट. डिस्काउंट विल बी, कितना देना है डिस्काउंट? 0.5%, sir. 0.5%. 0.5% किसका होगा? Sales value का 45 million. नहीं ना, पूरे सेल का थोड़ी होगा. नॉट एवरीबडी इज नॉट गेटिंग अ डिस्काउंट ना. सर Sir, so the 10%, 50% only are getting, 50%, है yes, ना. sir. 50% customers are getting the discount into 0.5%. 1,12,500. Correct. So how will you comment on this? So there is saving in finance cost 96,250, whereas डिस्काउंट देंगे तो कितना खर्चा आएगा, कितना लॉस होगा? 1,12,500 का लॉस होगा, राइट. सो शुड यू एक्सेप्ट द ऑफर? नो सर. नो. Why not? Because when you move from the old system to the new system, you save finance cost of 96,250, but there is a discount cost of 1,12,500. So additional cost is more than additional revenue. ठीक है. यस. So which is why you say no. Okay. चलो. Fair enough. So theory part you are going to do on your own and of course practice that properly.